Hello students, this video is for class 11th and 12th. In this video, I'll do chapter relational databases. So in this playlist, this is first video of the playlist. In this playlist, I'll cover RDBMS package MySQL. So continue watching first video, then second, then third, then fourth. In these complete playlist, I'll cover MySQL. Let's start here. First of all, introduction and what is the purpose of DBMS and what is RDBMS model, relational data model technologies, then brief history, MySQL database system, starting with MySQL and MySQL and SQL, its comparative and differences. So let's start introduction here. A database system is basically a computer-based record keeping system. अब रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम तो कंप्यूटर बेस्ड ना भी हो, फॉर एग्जांपल एक नोटबुक के थ्रू आप डेटाबेस रख सकते हो. एक स्मॉल शॉपकीपर आपका नोटबुक में ही सारा रिकॉर्ड रखता है, तो दैट स्मॉल शॉपकीपर कीपिंग रिकॉर्ड इन नोटबुक इज नॉट अ डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. जैसे हम अटेंडेंस रिकॉर्ड रखते हैं तो एक रजिस्टर पर रखते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड रखते हैं, अगर वो भी हम रजिस्टर पे रख रहे हो तो दैट इज नॉट अ डाटाबेस, दैट इज अ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड database system. The collection of data usually referred to as database. So what is a database? Database is a container which keeps some data, contain information about one particular enterprises. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्पेसिफिक रीजन से डेटाबेस बनाते हैं. जैसे कि डेटाबेस की डेफिनेशन भी दी है, अ डेटाबेस मे बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा. या इंटर रिलेटेड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ द डाटा इज नॉट इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, वी विल नॉट कीप द डाटा विद इन वन डेटाबेसेस. तो एक डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा वो सारा इंटर रिलेटेड होगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एम पर बेस्ड होगा. A database may also be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो इन ए स्कूल देयर इज अ क्लासरूम, देयर इज अ timetable, there can be buses, report card. So in this way, to keep record about the classes, about the student, about the teachers, by which bus each and every student is going, in which classroom each and every student is sitting, timetable which teacher is teaching which class and section at a particular time. So all these tables are stored in one databases because all these tables are related to school database. So school is a database which contain classroom as a table, timetable as a table, buses as a table, marks record, attendance record, father's name, mother's name, etc. All these records are stored under one database, that is interrelated data. Okay, so this is the introduction about the data. Now what is RDBMS? RDBMS is helping us to search the data, to store data, to create new databases, to modify some values in the databases, to delete a database. So many purposes are there that we will continue in this video. What is the purpose of database? See, the purpose of database is a database system should be repositionary of the data needed for an organization. क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी डाटा चाहिए उसकी वैल्यू है उस डेटाबेस के लिए. whenever it is required it should search it, whenever it is required it should modify it, create new databases, सर्चिंग डेटाबेसेस. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना भी हमें एक डेटाबेस से हेल्प चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे RDBMS पैकेज की, DBMS पैकेज की. That should be accurate, private, protected from damage. तो क्या है कि इस डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा डाटा एक्यूरेट हो, प्राइवेट डाटा हो तो ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन यूज इट,
और प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए कि वो डैमेज हो तो उसका कहीं बैकअप भी हो ताकि डैमेज होने के बाद हम उस बैकअप से डाटा अपना ले सकें। It should be organized so that diverse applications with different data requirement can employ the data. Means analysis के लिए अलग फॉर्म में डाटा चाहिए हमें, हमें रिपोर्ट्स के लिए अलग फॉर्म में डाटा चाहिए। तो जब हम डाटा व्यू करते हैं या जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं और जब हम डाटा का करेक्शन चेक करते हैं या प्राइवेसी, अलग अलग यूजर्स के लिए, क्लर्क के लिए डिफरेंट डाटा चाहिए, टीचर के लिए डिफरेंट डाटा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल टीचर इज गोइंग टू व्यू ओनली मार्क्स एंड क्लर्क इज ओनली गोइंग टू व्यू द फीस, hostel warden is going to see the mess record or the room number of the child। तो सारा डाटा एक ही यूजर को नहीं चाहिए, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग फॉर्म में डाटा चाहिए। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन टू डिफरेंट यूजर्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो अब ये रिक्वायरमेंट सेट कौन करता है? डीपीए सेट करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विल सेट द रिक्वायरमेंट। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। A DBMS database management system refers to a software that is responsible for storing, maintaining, utilizing databases. A database along with DBMS is referred to as a database system. तो अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियोस में, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं? माई सीक्वल करने जा रहे हैं। माई सीक्वल इज ए RDBMS। ओके, तो हम माई सीक्वल करेंगे इसमें। तो अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं किया है हमने। इन टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। अब देखो, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंपैरिजन ऑफ सिंपल फाइल सिस्टम विद RDBMS। A number of different applications programs are written to extract record from and add record to the appropriate file. Okay, but this scheme has a number of major limitations। कुछ limitations हैं, कुछ disadvantages हैं simple file system के as compared to RDBMS। तो वो क्या क्या है? देखो, data redundancy, मतलब हम कुछ चीजें बार बार लिखनी पड़ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेबल में मैंने रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट, ये हमने कॉलम लिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। Now one more table I am creating, roll number, name. Now in place of marks I'm writing bus number. Now there is another table in which roll number, name, this roll number, name, these two columns are everywhere in each and every register। तो क्या हुआ? ये डुप्लीकेट डाटा को हम बार बार लिख रहे हैं। सिर्फ एक कॉलम चेंज होता है, कौन सा? मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, मार्क्स ऑफ फिजिक्स, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स, बस नंबर, हॉस्टल रूम नंबर, मेस अकाउंट नंबर। तो टेबल्स बहुत सारी हैं, लेकिन नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये चार कॉलम तो हमेशा सेम रहेंगे हर रजिस्टर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए रेडंडेंसी मींस हम रिपीटिशन करते हैं अपने रजिस्टर्स में, जो कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम में नहीं होती। नेक्स्ट है डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेबल में हमने रोल नंबर 1 लिख दिया, हो सकता है बाय मिस्टेक वो दूसरी टेबल में उसी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 बन जाए। तो ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गई, एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। तो इनकंसिस्टेंसी इज नॉट पॉसिबल इन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अनशेयरेबल डाटा, अब हमें मैनुअल सिस्टम में शेयर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स हमें डाटा शेयर करने की परमिशन देते हैं। Unstandardized data means one employee is going from an organization and new employee is coming। तो क्या होगा? जो पहले वाले एम्प्लॉय ने अगर स्टैंडर्डाइज मेथड यूज किया होगा प्रोसेस को करने के लिए, तो न्यू यूजर के लिए वो समझना इजी हो जाएगा। अदरवाइज न्यू यूजर प्रॉब्लम में होगा कि भाई पहले जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था वो उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये होगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क किया हुआ होता है। इनसिक्योर डाटा मींस डाटा कैन बी डैमेज्ड, तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए डाटा। अनऑथराइज्ड यूजर्स भी उस डाटा को देख सकते हैं। तो database management system provide backup as well as authentication system so that unauthorized user cannot see the data and in case of emergency damage हो जाता है तो बैकअप से डाटा हम ले सकते हैं।
incorrect data. Incorrect data means data, some authentications can be used, some check constraints can be used to authenticate data कि ये data valid भी है या नहीं. ठीक है. A database management system is answer to all these problems. जो अभी हमने सारी डिस्कस की हैं प्रॉब्लम, data inconsistency, data shareable data, inconsistency, insecure data, unstandardization data, इनकरेक्ट डेटा, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैनुअल डेटाबेस सिस्टम में हो सकती हैं, सिंपल फाइल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में हो सकती हैं, बट आरडीबीएमएस में इन सभी प्रॉब्लम्स को कवर कर दिया है. देयर इज नो सच प्रॉब्लम. ओके. रिलेशनल डाटा मॉडल. अब हम रिलेशनल डाटा मॉडल को समझते हैं. रिलेशन मीन्स ए टेबल. In relational data model, the data is organized into tables, rows and columns. These tables are called relation. A row in a table represents a relation, okay, among a set of values. Since a table is a collection of such relationship, it is generally referred to using a mathematical term relation, okay, from which the relation model are. अब मैंने क्या किया, there is a table, suppose this is a table in which I have written the record of students, roll number, name, class, section, marks, etc. तो ये पूरी टेबल स्टूडेंट के लिए हो गई. There is one more table, I am saying this table is for teachers. Okay, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, ये टीचर्स की टेबल है. Now in this teachers table again teacher number, name, designation, subject, तो ये सब हो गया. So now if there are 2000 students in a school and there are suppose 200 teachers, तो एक वो टेबल बनेगा. I'll say the name of that table is timetable. Now timetable is an association between teacher and student. In this specific time, this teacher will go to 12th C. In this specific time, this particular teacher will go to 12th A. This teacher will go to 10th B. In this way, timetable is again a relation. This relation is between student-teacher relations. Okay. So, what is a relational database? Relational database contain a number of relation. और relation क्या है? मैंने अभी आपको बताया. Relation is a table. So here, see here, this is one example given in your book. Let us see how a simple database can be represented in relational form. The sample database being shown here has three tables. कौन-कौन सी टेबल है? Supplier, item and shipment. अब supplier टेबल में क्या है? देखो, supplier number, supplier name, status and city. ये चार कॉलम्स है. And in item table there is item number, item name and price. तीन columns है. And in shipment table, this shipment contains supplier number and item number and quantity supplied. अब मैं कहता हूं कि एक सप्लायर जो दिल्ली से है वो किसी पर्टिकुलर सिटी से चंडीगढ़ सिटी में किसी पर्टिकुलर आइटम को सप्लाई कर रहा है. तो हमें शिपमेंट का मतलब ये है कि आइटम नंबर एंड सप्लायर नंबर एंड द क्वांटिटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस सप्लायर एंड दिस आइटम टू ए पर्टिकुलर रिसीवर. ठीक है ना. तो एक टेबल और भी बनाई जा सकती है यहाँ पर कि रिसीव कौन कर रहा है. ठीक है ना. वो हमारी कस्टमर टेबल हो सकती है. So in this way, these three tables are successfully making a database. Okay, each of these three tables closely resemble a conventional sequential file, which with rows of table corresponding to the records of the file and columns corresponding to the. देखो अब ये ध्यान से देखने वाली बात ये है कि each of these tables is actually a special case of the construct known as mathematical relation. More rows relations are generally. देखो अब ये कुछ नेम बता रहे हैं हम. Table is called relation. Row is called tuple. And column is called attribute.
तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि टेबल को हम रिलेशन कह रहे हैं, रो को हम टपल कह रहे हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट कह रहे हैं। रो को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। रो इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड। See, this is a table. Supplier. There are 5 suppliers, say Britannica, New Bakers, Mother Dairy, Cooks, and Haldiram. And these are the supplier number given to these suppliers. And status is this, and city is this. Okay. And there are 2 more tables as shown above: items and shipment. Item is milk, cake, bread, etc. Item numbers are, these are the item numbers. Okay. And its price is also given here. Okay. Now see, this is first order. S1, I2. S1 is Britannia. I2 is cake. And quantity is 10. So means Britannia cakes, 10 number of items are 10, are supplied to a particular shopkeeper. Now next is S1 I3, means S1 is Britannia, I3 is bread. So Britannia bread is quantity is 20, is provided to one more shopkeeper. In this way, S1 I6, S1 is Britannia, I6 is cream biscuit, is provided to a third shopkeeper. Quantity is 20. In this way, this table is clearly viewing you that which item provided by which supplier and what is the quantity. और अगर एक और कॉलम हम इसे बना देते, ऐसा हो सकता था, ठीक है ना, कि हमने यहाँ पर कस्टमर को एक और टेबल बनाई कस्टमर, उसमें हम कस्टमर का नेम भी लिख सकते थे कि दिस इज प्रोवाइडेड टू दिस कस्टमर, दिस इज प्रोवाइडेड। तो इन दिस वे इट database contains not only 3 tables, more than 3 tables are also possible. Okay, so but all these tables, all these relations should be related to one another. Relational database है ना, तो हमें related data ही लेना है। Component of a table. अब एक टेबल में हम जब डाटा स्टोर करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसका हमने ध्यान रखना है। बाइट, ए बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड इज यूज्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर। तो हम टेबल में कोई भी डाटा डालेंगे तो बाइट की फॉर्म में हमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डेटा आइटम फील्ड। ए डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा, ठीक है। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स। A data item represent one type of information and is often referred to as a field or database. तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि this column is roll number, this column is name, तो roll number सभी का डाटा टाइप इंटीजर होगा, नंबर होगा। नेम जितने भी डाटा टाइप होंगे वो सारे स्ट्रिंग होंगे। तो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा टाइप्स एक कॉलम के हो सकते हैं। पर अगर मैं रो की बात करूं तो रोल नंबर 1 है, नेम हो सकता है अजय हो, क्लास सेक्शन 12th। इन दिस वे रिकॉर्ड में सारे के सारे डेटाबेस अलग अलग होंगे, सभी डेटा टाइप्स अलग अलग होंगे, पर एक कॉलम में सारे के सारे डेटा टाइप्स सेम होंगे। रिकॉर्ड को टपल भी कहते हैं। तो रिकॉर्ड इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब अगर मैं किसी की बात करूं, रोल नंबर 1 की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 का नेम, रोल नंबर 1 का क्लास, रोल नंबर 1 का सेक्शन, रोल नंबर 1 की फीस, ये पूरा का पूरा एक रो जो होगा, उस रो को मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड। कॉलम में तो सभी के रोल नंबर आ गए, सभी के नेम आ गए, लेकिन रो में एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, हर चीज आ गई, ठीक है। टेबल, ए टेबल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल occurrences of given type of logical record। तो टेबल क्या हो गया? टेबल हो गया हमारा रोज और कॉलम्स का एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
फील्ड्स आर द कॉलम, ठीक है, हमने फील्ड्स और कॉलम्स को पढ़ लिया। रिकॉर्ड्स आर द रोज एंड टपल्स, ठीक है, आपने देख लिया। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेबल। नाउ a particular column which recognize the complete record as a unique record। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रो की बात करें, अगर इस रो की बात कर रहे हैं, तो जो इस पर्टिकुलर रो में नंबर 10 है, ये हमारा सेल्समैन नंबर है। इसको हम प्राइमरी की इज ए यूनिट, इज अ कॉलम नेम विच हैज कैपेबिलिटी टू कंप्लीटली रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड। यूनिकनेस होती है इसमें, ठीक है ना। और फील्ड क्या होते हैं? फील्ड तो सभी कॉलम्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल्स मोड, टारगेट, सेल्समैन नंबर, ये कंप्लीट जो जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको हम फील्ड कहेंगे। फील्ड इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट, ठीक है ना। पर एक स्पेसिफिक कॉलम होगा, वो स्पेशल कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम प्राइमरी की कॉलम कहेंगे, ठीक है। इन अ टेबल ईच रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड विद ए यूनिक वैल्यू। मैंने कहा ना कि प्राइमरी की होगी। इन अ फील्ड ऑफ टेबल there are unique values for all the record. This unique value identifies the record. For instance, in figure 15.2, the field salesman number has a unique value, so salesman number is a primary key. Primary key has capability to uniquely identify a row, और किसी का भी दो जनों का चीज सेम नहीं हो सकती। दो सेल्समैन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्राइमरी की है एंड इट इज यूनिकली आइडेंटिफाइएबल फॉर ईच एंड एवरी सेल्समैन। ओके, in a table there may be more than one field having unique value. In such cases only one of them is decided as a primary key. तो प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है, पर हो सकता है कि मोर देन वन कॉलम्स हो जिनके पास कैपेबिलिटी है। द मोर देन वन कॉलम कैन हैव कैपेबिलिटी टू बिकम ए प्राइमरी की, तो प्राइमरी की एक ही बनेगा, बाकी जो रहेंगे वो अल्टरनेट कीज रह जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास हो सकता है कि 5 कैंडिडेट कीज हो, 5 में से एक को हम प्राइमरी की बना दें और बाकी के 4 अल्टरनेट कीज रह जाएंगे, ठीक है। The relational data model is based on a collection of tables. Relation, ठीक है। The user of the relational database systems may query these tables, insert new tuples, delete tuples, modify tuples। मतलब क्या कर सकते हैं, जितने भी यूजर हैं वो इन रिलेशंस में नया डाटा ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। There are several languages expressing these operations. Two such languages are relational query languages and relational algebra. Relational algebra और SQL, ठीक है ना, हम आगे पढ़ेंगे SQL इसी सीरीज में। तो ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम SQL स्टार्ट कर देंगे। Example of common relational database management system includes Oracle। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस RDBMS पैकेजेस है। देखो, Oracle, दिस इज वेरी गुड डेटाबेस। SAP, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2, IBM Informix, SAP Sybase। तो बहुत सारे डेटाबेस RDBMS पैकेजेस हैं, पर हम अपनी इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हम MySQL को कवर करेंगे, ठीक है। MySQL एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पर। MySQL is a relational database management system that can run on virtually all platforms। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सभी लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे ये वर्क करता है, इंक्लूडिंग लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एटसेट्रा। पॉपुलर फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन पब्लिशिंग, ठीक है। MySQL is part of ओपन सोर्स है एंटरप्राइज स्टैक, ठीक है ना, लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। तो ये इस पैकेज के अंदर आता है जो ओपन सोर्स है सभी, ठीक है ना। वी विल स्टडी दिस इन दिस प्लेलिस्ट। कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल फॉर मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूड्स
SQL एनीवेयर, DB2 एवरीवेयर, IBM मोबाइल डेटाबेसेस। तो ये हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम मोबाइल एंड्रॉइड वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। द रिलेशनल मॉडल टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज। देखो अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेशनल मॉडल की जो हमें समझनी है। व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन। इन जनरल a relation is a table data arranged in the form of rows and columns. A relation has the following properties. अब relation table की properties कौन कौन सी है वो देखते हैं। In any given column of a table, all items are of the same data type. तो column में तो सारा data type same होगा। जैसे एक column में roll number है तो सभी roll numbers ही होंगे, एक column में name है तो सभी names ही होंगे, उनकी data type same होगी। For a row, each column must have atomic value. मतलब एक पर्टिकुलर सेल में हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एक ही सेल में डाल दिया। एड्रेस जैसा है, एड्रेस कॉलम में हमें हाउस नंबर, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ सकती हैं, लेकिन दैट हाउस एड्रेस इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर एटॉमिक वैल्यू। ठीक है ना। नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सभी एक एक वैल्यू होनी चाहिए। एक ही स्पेसिफिक सेल में हमें मल्टीपल वैल्यूज नहीं डालनी है। एटॉमिक वैल्यू का मीनिंग ये है। ठीक है ना। ऑल रोज ऑफ ए रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। तो सभी के सभी रोज डिफरेंट होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि दो बच्चों के रोल नंबर या दो बच्चों के नेम सेम हो सकते हैं, दो बच्चों के एड्रेसेस सेम हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन पूरी की पूरी रो सेम नहीं हो सकती। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सेम हो सकती है। नेम्स ऑफ टू स्टूडेंट्स आर सेम, हो सकता है ऐसा। एड्रेसेस भी अगर वो सेम घर से आ रहे हैं, दोनों भाई हैं या भाई बहन है, तो वो आ सकते हैं। लेकिन एड्रेसेस सेम का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी रो ही सेम हो जाएगी। रोल नंबर तो डिफरेंट होंगे ही उनके। ठीक है। there is no order maintained for rows inside the relation. अब देखो, order of rows and order of column is immaterial in any database management system. MySQL में भी क्या होगा, जो order होगा rows का वो हम अपनी requirement के according change कर लेंगे। कभी हम name wise alphabetic order हमें चाहिए, कभी हमें marks wise merit order सबसे पहले चाहिए तो descending order चाहिए marks wise, कभी हम रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो डेटा को हम हमेशा रीअरेंज करते रहेंगे, उनका ऑर्डर चेंज करते रहेंगे, कॉलम्स का भी और रोज का भी। तो उसके जो कॉलम्स और रोज है वो उनका ऑर्डर फिक्स नहीं है, इट इज इमटेरियल। द कॉलम्स ऑफ ए रिलेशन आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम्स। ठीक है ना। एंड ऑर्डरिंग दीज कॉलम्स आर अगेन इमटेरियल। तो जो रोज हैं वो भी और जो कॉलम्स हैं वो भी, उनका ऑर्डर फिक्स नहीं है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी है डोमेन। जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज कहां से आएंगी, तो उसके लिए एक डोमेन सेट करते हैं। ठीक है। डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग। ठीक है ना। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जरूर रेंज एंड डोमेन। तो सेट थ्योरी पर बहुत सारा मटेरियल इसका सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ अपीयरिंग इन अ सप्लायर नंबर कॉलम ऑफ बोथ द सप्लायर्स टेबल एंड शिपमेंट टेबल आर ड्रॉन फ्रॉम अंडरलाइंग डोमेन ऑफ ऑल वैलिड सप्लायर नंबर। तो हो सकता है हमारे पास 50 सप्लायर्स हों, 50 सप्लायर्स का नंबर हमने हो सकता है S1, S2, S3 ऐसे करके हमने बना दिया। तो जो भी हमने टेबल बनाई उसमें अगर हम सप्लायर नंबर की बात करते हैं तो सप्लायर नंबर S1 से लेकर और S50 की रेंज से ही आ सकते हैं। क्या कोई S51 सप्लायर है? नहीं है। तो अगर हमारे पास 50 सप्लायर्स हैं जिनको हमने S1, S2, S3, S4 नंबर दे दिए हैं, तो दीज आर द डोमेन फ्रॉम वेयर एनी सप्लायर कैन बी सेलेक्टेड। तो डोमेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। A domain is said to be atomic if elements of the domain are considered to be indivisible unit। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर यूनिट को भी एस कॉलम डाल दिया और 4 कॉलम डाल दिया, नहीं नहीं। दिस इज एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू मींस देयर इज नो फर्दर सब डिवीजन ऑफ दिस वैल्यू।
ठीक है ना। अगर हम नेम की बात करते हैं तो हो सकता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो हो जाए, तो हम दो कॉलम बना देंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर तीन नेम हो गए तो हम तीन कॉलम बना देंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही सप्लायर नंबर में हम, एक ही सप्लायर नेम में हम पूरा का पूरा नाम लिख देंगे। नो, बेटर इज कि हम क्या करेंगे, हम एक एटॉमिक वैल्यू एक कॉलम में लिखेंगे, एक सेल में लिखेंगे। सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। व्हाट इज ए सेल? दिस इज कॉलम, दिस इज रो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है उसको मैं सेल कह रहा हूं। तो एक सेल में हमें वैल्यू हमेशा एटॉमिक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इन द सैंपल डेटाबेस ऑब्जर्व दैट रिलेशन सप्लायर एंड शिपमेंट हैव ए कॉमन डोमेन, ठीक है। तो आइटम एंड शिपमेंट, आइटम नंबर, देखो अब क्या है कि ये तीनों टेबल हमने पहले भी देखी है। S1, S2, S3, S4 ये क्या है? सप्लायर नंबर, ठीक है। सप्लायर नंबर तो है, यहीं से ही सप्लायर नंबर सप्लाई करेंगे ना। इज इट क्लियर? तो अगर कोई सप्लायर ही नहीं है तो वो सप्लाई कैसे कर सकता है? तो ऑल दीज S1, S2, S3, S4, S5 आर सप्लाइंग सम डाटा टू द शॉपकीपर्स। तो S1 is supplying three things to three shopkeepers. S2 is supplying two things. S3, S4. In this way, I'll say that suppliers are providing these. This is domain, I'll say, and this is the value taken from the domain. Okay. टपल, एट्रीब्यूट, ये मैंने आपको बता दिया। डिग्री की बात करते हैं। टपल इज रो, attribute is column, okay. Degree, the number of attributes in a table is called degree of that relation, and the number of rows in a table is called its cardinality. Cardinality क्या हुआ कि वो टेबल में, उस टेबल में कितने, डिग्री क्या हुई, उसमें कितने कॉलम्स है, और कार्डिनैलिटी क्या हुई कि उसमें कितनी रोज है। तो हम जनरली बात करते हैं cardinality multiplied by degree is the total number of cells in that table, ठीक है। व्यू, अब बात करते हैं व्यू क्या चीज है। ए व्यू इज ए काइंड ऑफ टेबल, मतलब टेबल तो है लेकिन वो कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रही, whose contents are taken from other table depending upon the condition। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, कि मैंने एक बहुत बड़ी टेबल बना दी। दिस इज अ टेबल वेयर 50 कॉलम्स आर देयर। रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एड्रेस, फोन नंबर, बहुत एक फुल साइज की टेबल बना दी, जो हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है मैंने वो कंप्लीट टेबल एक ही टेबल में ले लिया। नाउ इन ए स्कूल देयर आर 2000 स्टूडेंट्स, मे बी 6000 स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, उसको एक एडमिशन नंबर भी कॉलम दे दिया। एडमिशन नंबर इज 1057, 1058, 1059, जितने भी एडमिशन नंबर है 5000 स्टूडेंट्स के लिए दे दिया। तो दिस इज अ बिग टेबल। इतनी बड़ी टेबल किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को देखनी नहीं है। ए टीचर वांट टू सी हिज ओन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मार्क्स, और वो भी सभी पूरे स्कूल के नहीं, ओनली द सेक्शंस जो वो पढ़ा रहा है, ठीक है ना। सपोज आई एम टीचिंग 12C एंड देयर आर 28 स्टूडेंट्स इन 12C। आई एम आल्सो टीचिंग 10th A एंड सपोज देयर आर 38 स्टूडेंट्स इन 12th A, 10th A। तो मुझे 12C, 10th A या कोई और भी अगर मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं का ही डाटा देखना है ना, पूरा तो नहीं देखनी, इतनी बड़ी टेबल मुझे नहीं देखनी। आई वांट टू सी द डाटा व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय मी। और अगर अनऑथराइज्ड डेटा कोई और व्यू भी कर लेगा तो
वो डैमेज कर सकता है उस डेटा को। तो व्हाट आई वांट इज आई वांट ऑथेंटिकेशन। तो व्यू क्या होगा, व्यू विल टेक डेटा फ्रॉम दिस बिग टेबल एंड शो यू एज ए यूजर। तो यूजर को क्या डेटा दिखना है, बस उतना ही डेटा दिखाई देगा, पर पूरी टेबल में तो बहुत सारा डेटा है। द कंप्लीट टेबल इज नॉट विजिबल थ्रू व्यूज। Views are, you can say, a view is a kind of table whose contents are taken from table depending upon the condition. View do not contain data. अपना उसका डेटा खुद का कुछ नहीं है। The contents of the view are determined by carrying out the execution of given query. Query लगाई मैंने, select roll number, name, मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मुझे 3 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, रोल नंबर, नेम और कंप्यूटर साइंस। और कहां से सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या चीज है, स्टूडेंट एक टेबल अभी जो हमने बनाई है, इतनी बड़ी टेबल जो बनाई है। अब उस स्टूडेंट टेबल से मुझे सभी के नहीं देखने, मुझे सिर्फ उसके देखने हैं वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th एंड सेक्शन इज इक्वल टू सी। अब क्या होगा, रोल नंबर, नेम, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स, ये 3 कॉलम सिर्फ 12C क्लास के आ जाएंगे, क्योंकि मैं सभी सेक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो 12C ही पढ़ा रहा हूं ना। तो आई वांट टू सी द डेटा फ्रॉम दिस बिग टेबल in the form of a view, and view is a partial table, part of the table. Actual data is taken from the big table, but view is a you can say it's part of the table using query. ये जो मैंने अभी भी लिखी है ये query है, ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप इस बुक से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये, इसमें सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस बुक को आई होप आपने परचेज कर लिया होगा अब तक, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। कंसीडर द आइटम टेबल ऑफ आवर सैंपल डेटाबेस। इट हैज 3 एट्रीब्यूट्स, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस। फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज अ सेट ऑफ permitted values, जिसको हमने डोमेन कहा था, ठीक है ना। For the attribute item name, for example, the domain of the domain is the set of all items. तो जितने भी एक पर्टिकुलर शॉप में आइटम्स हो सकती हैं, वो सारे नेम जो हो गया वो डोमेन किसका हो गया, आइटम नेम का, ठीक है ना। D2 be this set, D1 be the set of item नंबर। तो अब मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं आपको कि एक शॉपकीपर को 100 आइटम्स चाहिए, पर एक सप्लायर 100 आइटम सप्लाई नहीं कर सकता। तो देयर इज वन सप्लायर which is providing 3 items. There is another supplier which can provide you 5 items. There is one more supplier which is providing only 2 items. तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था ना, ब्रिटेनिका, मदर डेयरी, अमूल। तो हर सप्लायर एक शॉपकीपर जिसके पास 100 आइटम्स हैं, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आइटम सप्लाई कर रहा है। तो इसके पास जितने भी आइटम्स हैं वो आइटम्स किसी स्पेसिफिक सप्लायर से यहां पर सप्लाई हो रही है। तो इसको जो हम कहेंगे ना, इसको हम अल्टीमेटली ये सभी की सभी टेबल्स एक रिलेशंस है, और उस रिलेशन को हम जब एक ही जगह इकट्ठी करके रखते हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट डेटा एज ए डेटाबेस, तो हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। कीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कीज के ऊपर। तो कीज होती क्या है बेसिकली, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पेसिफाई हाउ रोज इन ए रिलेशन आर डिस्टिंग्विश conceptually. Rows are distinct from one another but from a database prescriptive। देखो अब क्या है कि 2 रोज अलग अलग कैसे दिखाई दे, 2 बच्चों के नेम सेम हो गए बाय चांस, सपोज उनका एड्रेस भी सेम होगी कि वो एक ही बिल्डिंग से आ रहे हैं, क्लास और सेक्शन भी अज्यूम करो सेम हो गए, तो उनके बहुत से एट्रीब्यूट्स मैच कर गए। अगर पूरी की पूरी रो मैच कर जाएगी तो हम उसको कहेंगे डुप्लीकेट डाटा।
रोल नंबर एटलीस्ट या एडमिशन नंबर उसका अलग होना ही चाहिए, ताकि हम उस बच्चे को डिस्टिंग्विश कर सकें, ताकि उनकी मार्क्स एंट्री में ये कंफ्यूजन ना आए कि ये मार्क्स इस पर्टिकुलर अजय के हैं या कोई और अजय भी है। दो अजय हो सकते हैं, लेकिन हमें मार्क्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें एडमिशन नंबर, रोल नंबर हमें अलग करने ही पड़ेंगे। तो जो यूनिक एट्रीब्यूट है, उस यूनिक एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी की, प्राइमरी की इज a set of one or more attribute that can uniquely identify tuple within the relation। बड़ी क्लियर डेफिनेशन है कि प्राइमरी की एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है। सप्लायर और इन टेबल्स में सप्लायर नंबर, आइटम नंबर, ये प्राइमरी की है, ठीक है। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है? अगर किसी टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम प्राइमरी की बनने के कैपेबल नहीं है, सपोज मैंने कहा कि रोल नंबर है नहीं, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मार्क्स और क्लास और सेक्शन, ये सभी है। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, इन तीनों को कंपोजिट प्राइमरी की बनाता हूं कि किसी का नेम हो सकता है तो सरनेम अलग होगा, किसी का सरनेम सेम है तो उनका नेम अलग होगा। हो सकता है कि किसी का सरनेम भी सेम हो, नेम भी सेम हो, पर उसके बीच में कोई टाइटल लगाया जा सकता है, जैसे रविंदर बजाज, ठीक है, ये एक नेम हो गया। रविंदर बंसल दूसरा हो गया, या अजय बजाज या अजय बंसल, तो ये नेम अलग ही कहलाएंगे। और अगर कोई दो सेम हो गए, सपोज रविंदर बजाज भी हो गया और एक और रविंदर बजाज भी लिखना चाहता हूं, तो उसको मैं रविंदर कुमार बजाज लिख सकता हूं। मीन्स आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई दैट कंपोजिट प्राइमरी की will take more than one column to make one primary key। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, ऐसा भी हो सकता है कि तीन रविंदर हैं, तो हमने रविंदर 1, रविंदर 2, रविंदर 3 ऐसे करके कर लिया, लेकिन हमने कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, डुप्लीकेट डाटा से बचने के लिए। कैंडिडेट की, अब मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट की आर द कॉलम्स हु हैज कैपेबिलिटी टू बिकम ए प्राइमरी की। तो अगर हमने प्राइमरी की बनने की कैपेबल 2 कॉलम ले लिए, 3 कॉलम ले लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, ठीक है ना। उन कैंडिडेट में से एक को हम प्राइमरी की बना देंगे, और जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बनेंगे उनको मैं ऑल्टरनेट की कह रहा हूं। ऑल्टरनेट कीज आर द कैपेबल कीज जो प्राइमरी की नहीं बनाए हमने, और कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की बना दिया, बाकी जो बच गए वो ऑल्टरनेट कीज होंगे। फॉरेन की, अब मैंने कहा कि दिस इज द टेबल हुज रोल नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द मेन टेबल, इसको मैं मेन टेबल कह रहा हूं। अब मेन टेबल्स में जितने भी रोल नंबर हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टिव बच्चे किसी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, 1, 5, 7। सपोज रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 7 आर सिलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट। तो इनका जो ये कॉलम है, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज फॉरेन की, एंड रोल नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको मैं कह रहा हूं प्राइमरी की। तो मेन टेबल के स्पेसिफिक कॉलम, प्राइमरी कॉलम से एक, अब मैं इसको कह रहा हूं क्लाइंट टेबल या माइनर टेबल। माइनर टेबल में हमने कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ले लिए एक पर्टिकुलर रोल नंबर के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फॉरेन की कह रहे हैं, ठीक है। A foreign key is used to represent the relationship between two tables। A foreign key is a non-key attribute or a group of non-key attribute whose values are derived from primary key। देखो foreign key की जो वैल्यूज कहां से आएंगी, वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से आएंगी, ठीक है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये भी ऑलमोस्ट वही होता है कि हम डाटा को किसी दूसरी टेबल से या विद इन टेबल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। विद इन टेबल भी हम ले सकते हैं और दूसरी टेबल से भी ले सकते हैं। अभी ब्रीफ हिस्ट्री है एसक्यूएल की, ठीक है, चलो ये हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हो।
तो MySQL डेटाबेस सिस्टम को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट. This is end of the first video. Thank you.